Hello friends, welcome again. Last time we have seen the pollination. Before that we have seen male gametophyte, female gametophyte. Today we are going to discuss about the pollen pistil interaction. But before that we have seen already pollination. What is meant by pollination? So pollination means the transfer of pollen grains, means anther to the stigma of the flower is known as pollination. This happens with the help of two means, that is abiotic system and biotic system. Abiotic system means from only non-living things. Now non-living things, that is water pollination as well as wind pollination, that is known as anemophilous type of pollination means wind pollination, and hydrophilous pollination means water pollination, and the second means is by the biotic system or biotic type. Now it happens with the help of living organisms, that is insect pollination, bat pollination and birds pollination. We already discussed about the pollination. Now this is the lecture in which we are going to see about pollen pistil interaction. Now what is meant by pollen pistil interaction? By biology news we are going to discuss about today in the today's video. Now let's start the video. Pollen pistil interaction by biology news. So pollen pistil interaction, there are various types of events which happens in this interaction. First of all, deposition of pollen on the stigma to the entry of pollen tube in the ovule. Now when the pollen lands on the stigma of the flower, it moves from the pollen tube to the ovule or ovary. Now this happens in the form of pistil. Now pistil is known as the female reproductive organ, consists of stigma, style and ovary. These three parts together form a pistil. Pistil is known as the female reproductive organ. Now pistil has the ability to identify the pollen grain whether it is accepted or rejected. That results into continuous dialogue between pollen and pistil, which is mediated by chemical components of pollen and pistil. Now पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी, पिस्टिल को क्या रहता है, तो एबिलिटी रहता है इट रिकग्नाइजेस और आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलन ग्रेन. एकदम स्पेसिफिक होना वो पोलन ग्रेन, यानी राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही जर्मिनेशन कर सकता है. ये आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी किसके पास रहती है, तो पिस्टिल के पास रहती है. और पिस्टिल हैज़ द डिटेक्शन पावर. अब ये डिटेक्शन पावर कैसे आती है, तो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन यानी कंपेटिबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इज ओनली used in the further process of fertilization. यानी फर्टिलाइजेशन कौन सा पोलन ग्रेन करेगा, तो राइट टाइप का. अभी राइट टाइप यानी कंपेटिबल टाइप, इसका वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन दरअसल क्या होता है, दैट इज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल मीन्स. तो इट इज़ द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल. कंटिन्यूस इनमें डायलॉग्स चालू रहते. अभी डायलॉग चालू रहते यानी केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू और मीडिएट करता है केमिकल कंपोनेंट्स. दो तीन केमिकल कंपोनेंट्स के नाम आने वाले, जैसे कुछ एंजाइम से, कुछ कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटॉल का केमिकल ग्रेडियंट है वो यूज में आता है. पेक्टिन कैसे होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, वो भी हम देखेंगे. तो इट इज़ द डायनेमिक प्रोसेस, वेरी डायनेमिक प्रोसेस है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. तो इसमें क्या होता है, तो पॉलिनेशन इज़ ऑलवेज बाय द चांस. यानी पॉलिनेशन क्या रहता है, ये हम गारंटी नहीं ले सकते इसकी कि पॉलिनेशन होने ही वाला है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते. तो इट डज नॉट गिव द गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन दैट इज कंपेटिबल सेम कंपेटिबल यानी सेम स्पीशीज का एज द स्टिग्मा. म्हणजे स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आने वाला है वो राइट टाइप का ही होगा, ये इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता. रॉन्ग टाइप का भी आ सकता है, डेट इज़ इनकम्पेटिबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि अदर स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन होगा. अगर एग्जांपल लेंगे हम, हिबिस्कस का फ्लावर लिया, तो दूसरा अगर रोज़ का पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकता. ये कुछ एग्जांपल्स हमने ऐसे लिए, तो रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन वैसा हो जाएगा.
तो इसमें क्या होता है, जब पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, वहाँ पे एक सिक्रीशन होता है दैट इज़ एंजाइम सिक्रीट्स नोन एज पेक्टेज। और फिर पेक्टेज क्या करता है, पेक्टेज सिक्रीट वेयर द पेक्टिन डिजोल्व्स टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टिग्मा एब्सॉर्ब बाय द पोलन ग्रेन। अभी दोस्तों हमने पोलन ग्रेन लास्ट लेक्चर में देखा था, इट इज़ नोन एज द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का एक पार्ट है और उसका हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तब उसको आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन थी, यानी आउटर लेयर इनर लेयर, उसका नाम भी था एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन यानी आउटर लेयर, इंटाइन यानी इनर लेयर, और उसमें हमें एक गैप सिस्टम भी देखने मिली थी। तो गैप विच इज़ प्रेजेंट ऑन द पोलन ग्रेन दैट इज़ नोन एज द जर्म पोर। अब नाउ जर्म पोर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन की प्रोसेस में जर्म पोर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, और उसमें जाके आगे फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जब पोलन ग्रेन जब लैंड करता है स्टिग्मा पर, इट इज़ होल्डेड बाय द स्टिकी सिक्रीशन। स्टिग्मा आपको पता ही है कि उसके ऊपर एक सिक्रीशन रहता है, वो स्टिकी टाइप में रहता है। तो पोलन ग्रेन इज होल्डेड बाय द स्टिकी सिक्रीशन एंड स्टार्ट जर्मिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ऑन द स्टिग्मा। तो जब स्टार्ट होती है प्रोसेस तो उसमें मॉइस्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, न्यूट्रिएंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो germ tube emerges from the pollen and continues to as a pollen tube. During its growth, the pollen tube secretes enzymes like pectase, which dissolves the pectin in the tissue. Tissue में dissolve होता है, टिश्यू में डिजोल्व क्या होता है, तो पेक्टिन डिजोल्व होता है ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के इसके ऊपर वो डिजोल्व हो जाता है। तो ट्यूब वहाँ से ग्रो होना चालू करती है, और कैसे ग्रो होती है, तो केमोट्रॉपिकली ग्रो होती है, यानी केमोट्रॉपिकली यानी केमिकल मीन्स से वो ग्रो होती है इन द इंटरसेल्युलरी स्टाइल वेयर देर इज कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट। यानी ये अभी केमिकल्स कंपोनेंट है जो इसमें एक्टिव रोल प्ले करने वाले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, और वहाँ पे वो उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते। बाद में क्या होता है, व्हेन द टिप ऑफ पोलन ट्यूब रीचेज द माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल इज नोन एज द एंट्रेंस। एंट्रेंस से होता है, और वहाँ पे क्या एंट्रेंस होती है, तो वहाँ पे एम्ब्रियो सैक रहता है। तो माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक एंटर्स थ्रू वन सिनर्जिड्स। अभी एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे, फिगर में आप देख रहे होंगे कि वहाँ से एक स्टिग्मा ऊपर की लेयर में, नीचे एक पोलन ट्यूब रन होता है, वो रन कहाँ तक जाता है, तो माइक्रोपाइल तक जाता है। माइक्रोपाइल कहाँ पे ओपन होता है, तो एम्ब्रियो सैक में ओपन होता है। और एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, दैट इज एंटी पोलर न्यूक्लिया एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, और एक सेल प्रेजेंट है। अभी व्हेन देर इज दिस प्रोसेस देर इज एंट्रेंस ऑफ टू मेल गैमेट्स, एंड ये सब प्रोसेस में दो मेल गैमेट्स एंटर करते फ्रॉम द माइक्रोपाइल, यानी पोलन ट्यूब से होकर माइक्रोपाइल से एक सेल में या एम्ब्रियो सैक में दो मेल गैमेट्स एंटर करते। तो वन मेल गैमेट फ्यूजेस द एक सेल, यानी एक सेल को एक मेल गैमेट क्या करता है, तो फ्यूज करता है, और फर्टिलाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और बाद में क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। और नेक्स्ट जो है, जो बचा हुआ मेल गैमेट है, वो कहाँ पे जाता है, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द डबल फर्टिलाइजेशन। अभी ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम अगले लेक्चर में लेने वाले, वहाँ पे हम डिटेल में व्यू करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो किस वजह से होता है वो देखेंगे, और उसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। मगर आज हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते। एग्जाम्पल अगर देखें हम, अगर एक फ्लावर लिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर लो या बायोसेक्सुअल फ्लावर लो, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेते, तो उसमें जो पोलन ग्रेन आने वाला है वो कंपेटिबल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ये कंटिन्यूस उसमें क्या रहेगा, तो डायलॉग्स रहेंगे, और ये डायलॉग कौन मीडिएट करता है, तो उसका केमिकल कंपोनेंट। और केमिकल कंपोनेंट का नाम क्या है, तो पेक्टेज उसका नाम है, जो कि वो सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन होने के बाद वो कंपेटिबल
पोलन ग्रेन को ही अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए, एंट्री थ्रू द स्टिग्मा, एंड देट इट मूव्स टूवर्ड्स द पोलन ट्यूब, एंड पोलन ट्यूब से होकर वो कहाँ तक जाएगा, फिगर में दिया है तो माइक्रोपाइल तक जाएगा। ये रहे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के कुछ पॉइंट्स। आसान भाषा में इसको हम अगर कहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन बाय एनी टाइप ऑफ एजेंट is always by the chance. Okay, it does not guarantee the transfer of right type of pollen grain or compatible type of pollen grain into this system. ये कोई चांस नहीं ले सकता या कोई गारंटी नहीं दे सकता कि राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन एंट्री करेगा। दूसरा स्पीशीज़ का, दूसरा प्लांट का, अनदर स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स भी उस पर आ सकते, स्टिग्मा रहता है तो वहाँ पे स्टिक हो सकते, मगर उसको एंट्री नहीं मिलती। तो एंट्री किसको मिलेंगी, तो राइट टाइप के पोलन ग्रेन को ही एंट्री मिलेंगी। आपने पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंसीज देखी है, विंड पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है, हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, बैट पॉलिनेशन है या बर्ड्स पॉलिनेशन है। तो उसमें कंपेटिबल टाइप का पोलन ग्रेन ही आ सकता है, यानी उसको ही एंट्री मिलेंगी। ये इसको बोलते हैं हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इसमें दरअसल क्या होता है, तो the pistil has the ability to recognize the pollen. If it is right type, the pistil accepts it and promotes post pollination event that needs to fertilization. Fertilization की प्रोसेस में वो उसको रिकग्नाइज करता है और उसको बाद में उसको बाहर भेज देता है। By preventing the germination of pollen grain on the stigma or growth of pollen tube in the style. Only right type compatible pollen grain helps in the germination of this प्रोसेस, यानी राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन वहाँ पे एक्सेप्ट होता है और वही करेंगे जर्मिनेशन की पूरी प्रोसेस, या उसको हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऐसे भी कह सकते हैं, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। और ये सब प्रोसेस मिलाकर कहाँ पे जाती है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर जाती है, जहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन का टोटल वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज सिर्फ इतना ही कि पोलन पिस्टिल यानी क्या, उसकी अहमियत क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है। बाय कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग्स, केमिकल डायलॉग्स उनमें क्या रहते हैं, तो कंटिन्यूस होते रहते हैं। और कौन से होते हैं केमिकल डायलॉग्स, तो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर बीइंग मीडिएटेड इनटू दिस डायलॉग्स और इन देयर कॉन्वर्सेशन। उनमें जो भी इंटरकनेक्शन है या इंटरेक्शन है वो ऐसे तरह से होता है। अभी होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। बायोलॉजी न्यूज़ का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। हैव अ गुड डे।